امریکہ میں رجسٹریشن کے بغیر مقیم غیر ملکیوں پر نئی تلوار لٹکنے لگی۔ امریکہ میں غیر ملکیوں کا ہر گزرتا لمحہ مشکل سے مشکل تر ہو گیا ہے۔ ٹرمپ کی سخت گیر پالیسی کا نفاذ، گرین کارڈ ہولڈر سمیت تمام تارکین وطن کی کڑی نگرانی کا فیصلہ۔ امریکہ میں گرین کارڈ ہولڈر سمیت ہر غیر ملکی کا اندراج قانونی حیثیت کا ثبوت پاس رکھنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ امریکہ میں زیر تعلیم غیر ملکی طلبہ کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ ٹیکساس میں سینکڑوں غیر ملکی طلبہ کے ویزا منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ امریکہ گرفتار فلسطینی طالب علم محمود خلیل کو ملک بدر کر سکتا ہے۔ عدالت کا فیصلہ، امریکہ کا ہزاروں افغان اور کیمرون کے باشندوں کا ٹیمپریری پروٹیکٹڈ اسٹیٹس ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ امریکہ آنے والے غیر ملکیوں کو 30 دن سے زائد قیام پر کیا کرنا ہوگا؟ اس ویلاگ میں تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں حدیقہ عروج خان۔ ویورز، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے گزشتہ روز ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کے بعد امریکہ میں گرین کارڈ ہولڈر سمیت تمام تارکین وطن کے گرد نگرانی کا گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ امریکہ میں گزشتہ روز سے نافذ العمل نئے قانون کے مطابق امریکہ میں مقیم تمام تارکین وطن کو اپنا لازمی اندراج کرانا ہوگا۔ اس کے علاوہ انہیں شہر اور بیرون شہر سفر کے دوران اپنی قانونی حیثیت کا دستاویزی ثبوت بھی اپنے ساتھ رکھنا ہوگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ان احکامات میں گرین کارڈ ہولڈرز اور امریکہ میں قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں کی دیگر اقسام بھی شامل ہیں۔ اس قانون کے مطابق 18 سال اور اس سے زیادہ عمر کے تمام تارکین وطن کو اپنے اندراج کا ثبوت ساتھ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹرمپ کے اس نئے قانون کا اطلاق ایسے تمام تارکین وطن پر ہوتا ہے جو امریکہ کے شہری نہیں ہیں۔ اس حوالے سے امریکہ کے متعلقہ ادارے کا کہنا ہے کہ ایک بار جب کوئی اجنبی اندراج کروا لیتا ہے اور فنگر پرنٹس کے لیے حاضر ہوتا ہے تو DHS رجسٹریشن کے ثبوت جاری کرے گا، جسے 18 سال سے زیادہ عمر کے غیر ملکیوں کو ہر وقت ذاتی طور پر اپنے پاس رکھنا ہوگا۔ ان ایگزیکٹو آرڈر کی خلاف ورزی کے مرتکب تارکین وطن کو جرمانے اور قید کی سی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت 30 دن یا اس سے زیادہ عرصے تک امریکہ میں رہنے والے غیر ملکیوں کو بائیو میٹرک معلومات کے لیے نیا فارم G-32-5R سمیت ایک آن لائن سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے اندراج کرانا ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق اس اصول کا اطلاق تقریباً تمام غیر ملکیوں پر ہوتا ہے، بشمول عارضی زائرین، طلبہ اور کارکن صرف محدود پیمانے پر استثناء دیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت 14 سال سے کم عمر بچوں کے والدین یا قانونی سرپرستوں پر بھی ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں۔ 30 دن سے زائد عرصے تک امریکہ میں داخل ہونے والے کینیڈین شہریوں کو بھی رجسٹریشن کرانا ضروری ہے، جب تک کہ ان کے پاس پہلے سے ہی I-94 داخلہ ریکارڈ نہ ہو۔ نئے ضابطے کے بعد ٹریفک پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے افسران بھی اب قانونی طور پر کسی فرد کی رجسٹریشن اسٹیٹس کا ثبوت مانگ سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں جبکہ ٹرمپ انتظامیہ داخلی اور بین الاقوامی محاذ پر جارحانہ رویہ اپنائے ہوئے ہے، قانونی ماہرین نے تارکین وطن اور وزٹرز پر زور دیا ہے کہ وہ نئے ضابطے کو سنجیدگی سے لیں۔ امریکہ میں 30 روز سے زائد قیام کرنے والے ایسے تمام غیر ملکیوں کے خلاف ہفتے سے قانونی کارروائی کی جائے گی جنہوں نے ایلین رجسٹریشن ایکٹ کے تحت خود کو رجسٹرڈ نہیں کرایا۔ امریکی وزیر برائے ہوم لینڈ سیکیورٹی کرسٹی نوئم کا کہنا ہے کہ تمام غیر ملکی شہریوں کو انہوں نے خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ وفاقی قانون کے تحت خود کو رجسٹر کرانے سے متعلق دی گئی 11 اپریل کی ڈیڈ لائن کا فائدہ اٹھائیں، جبکہ دوسری صورت میں سخت کارروائی کے لیے وہ تیار رہیں۔ قانون کے تحت ایسے ایلین یعنی غیر ملکیوں کو مجرم تصور کیا جائے گا اور انہیں جرمانہ، سزائے قید یا دونوں سزائیں بیک وقت دی جا سکتی ہیں۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی وزیر کرسٹی نوئم نے کہا کہ صدر ٹرمپ اور وہ خود امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو واضح پیغام دے رہے ہیں، اگر آپ ابھی امریکہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو واپس امریکہ آنے اور یہاں آزادی سے لطف اٹھانے اور امریکن ڈریم جینے کا موقع مل سکے گا۔ کرسٹی نوئم نے ساتھ ہی خبردار کیا کہ ٹرمپ انتظامیہ تمام امیگریشن قوانین کا سختی سے اطلاق کرے گی اور اس بارے میں کوئی پک اینڈ چوز پالیسی نہیں اپنائی جائے گی۔ انتظامیہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ امریکہ میں کون اس ملک اور تمام امریکیوں کی سلامتی اور تحفظ کے لیے رہ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے 20 جنوری 2025 کو ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے تھے جو امریکی عوام کو بیرونی حملے سے تحفظ دینے، ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمہ کو امیگریشن نظام میں قانون کی بالادستی یقینی بنانے اور احتساب کرنے سے متعلق تھے۔ اس حکم نامے میں ایلین رجسٹریشن ایکٹ کا نفاذ یقینی بنانا شامل تھا۔
इस एक्ट के तहत किसी भी दर्जे के इम्तियाज के बगैर तमाम गैर मुल्की शहरियों पर इस बात का इतलाक होगा कि अगर वो 11 अप्रैल 2025 तक 30 रोज़ या इससे ज़ायद अरसे से अमेरिका में मुकीम हैं तो USCIS के ज़रिए ख़ुद को फौरी रजिस्टर कराएं। अगर वो रजिस्ट्रेशन कराए बगैर 11 अप्रैल के बाद अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं तो 30 रोज़ के अंदर अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाएं। अमेरिका में मौजूद ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 14 बरस मुकम्मल हो रही है वो दोबारा रजिस्ट्रेशन कराएं और 14वीं सालगिरह के 30 रोज़ के अंदर अंदर अपने फिंगरप्रिंट्स भी जमा करें। इस शिक का इतलाक उन बच्चों पर भी होगा जो पहले ही खुद को रजिस्टर करा चुके हैं। 14 बरस से कम उम्र के बच्चों के वालिदैन या गार्डियन से कहा गया है कि अगर बच्चे अमेरिका में 30 रोज़ या इससे ज़्यादा अरसे मुकीम रहें तो उन्हें रजिस्टर कराया जाए। रजिस्ट्रेशन कराने वाले अफराद को महकमा होमलैंड सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन के सबूत की दस्तावेज़ भी जारी करेगा। ये भी हुक्म दिया गया है कि 18 बरस और इससे ज़ायद उम्र के तमाम गैर अमरीकी शहरी इस दस्तावेज़ात को हर वक्त अपने साथ रखें। हुक्म अदूली करने वालों को कहीं पनाहगाह नहीं मिलेगी क्योंकि कानून पर अमल दरामद महकमा होमलैंड सिक्योरिटी की तरजीह रहेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप के एग्जेक्टिव ऑर्डर के बाद जुमा को नाफिज होने वाले नए कानून के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले तमाम गैर मुल्कियों को हुकूमत के पास अंदराज कराना होगा और हर वक्त अपनी कानूनी हैसियत का दस्तावेजी सबूत अपने पास रखना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस कानून का इतलाक तमाम ऐसे गैर मुल्कियों पर होता है जो अमेरिका के शहरी नहीं हैं। इसका ऐलान होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने किया था और US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज USCIS ने इसका इतलाक किया है। इस कानून के मुताबिक 18 साल और इससे ज़्यादा उम्र के तमाम गैर मुल्कियों बाशमूल कानूनी हैसियत के हामिल अफराद को हर वक्त अपने अंदराज का सबूत अपने साथ रखने का हुक्म दिया गया है। इन अहकामात में ग्रीन कार्ड होल्डर्स और अमेरिका में कानूनी तौर पर मुकीम गैर शहरियों की दीगर इकसाम शामिल हैं। USCIS ने 21 मार्च के अलर्ट में कहा था कि एक बार जब कोई अजनबी अंदराज करवा लेता है और फिंगरप्रिंट्स के लिए हाजिर होता है तो DHS रजिस्ट्रेशन के सबूत जारी करेगा जिसे 18 साल से ज़्यादा उम्र के गैर मुल्कियों को हर वक्त ज़ाती तौर पर पास रखना होगा। इसने इन तकाज़ों पर अमल करने में नाकामी की सूरत में मुजरिमाना और शहरी सज़ाओं के बारे में मुतनब्बे किया जिनमें बदसलूकी, जुर्माने या कैद भी शामिल है। ये कानून इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट INA के दफ़ा 262 को नाफिज करता है जिसमें तवील अरसे से गैर मुल्की शहरियों की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, लेकिन इसके नफाज के लिए एक बड़े मैकेनिज़्म का फुकदान है। सदर ट्रंप के एग्जेक्टिव ऑर्डर जिसका उन्वान 20 जनवरी को अमरीकी अवाम को हमले के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ देना है, उसने DHS को हिदायत की है कि वो रजिस्ट्रेशन की इस शर्त पर अमल ना करने को कानून नाफिज करने वाली तरजीह के तौर पर देखें। इस कानून के तहत 30 दिन या इससे ज़्यादा अरसे तक अमेरिका में रहने वाले गैर मुल्कियों को बायोमेट्रिक मालूमात के लिए नया फॉर्म G325R समेत एक ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए अंदराज कराना होगा। जिन लोगों के फिंगरप्रिंट्स पहले नहीं हुए हैं उन्हें भी फिंगरप्रिंट्स के लिए हाजिर होना होगा। हुक्काम ने भी कहा है कि अमेरिका में बहुत से गैर मुल्की पहले ही अंदराज करवा चुके हैं जैसा कि कानून के मुताबिक ज़रूरी है, ताहम अमेरिका में मौजूद गैर मुल्कियों की एक बड़ी तादाद के पास INA 262 के तहत अंदराज और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का कोई बराह रास्त रास्ता नहीं है। USCIS ने एक नई शक्ल कायम की है और एक ऑनलाइन अमल जिसके ज़रिए गैर रजिस्टर्ड गैर मुल्की अंदराज करा सकते हैं और कानून की तामील भी कर सकते हैं। इस असूल का इतलाक तकरीबन तमाम गैर मुल्कियों पर होता है बशमूल आर्जी ज़ायरीन, तलबा और कारकुन। सिर्फ महदूद पैमाने पर इस्तिस्ना दिया गया है। इस कानून के तहत 14 साल से कम उम्र बच्चों के वालिदैन या कानूनी सरपरस्तों पर भी जिम्मेदारियां आयद की गई हैं। अमेरिका में बैनुल अक़वामी तलबा के लिए तालीमी वीज़े पर खतरे की तलवार लटकने लगी है, ख़ुसूसन रियासत टेक्सास में जहां 122 से ज़ायद गैर मुल्की तलबा के वीज़े मनसूख या उनकी इमिग्रेशन हैसियत ख़त्म कर दी गई है। ये तब्दीलियाँ अमरीकी निज़ाम में की गई हैं जिसका मतलब है कि इन तलबा की कानूनी हैसियत अब ख़तरे में है। हुक्काम की जानिब से अब तक कोई वाज़े वजह सामने नहीं आई है, ताहम इमिग्रेशन माहिरीन का कहना है कि ये इक़दाम सख्त पॉलिसीज़, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और हालिया सियासी फैसलों का नतीजा हो सकता है। टेक्सास की मुतासरा यूनिवर्सिटीज़ में नुमाया तादाद यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन के तलबा की है, जिनमें हर एक से 27 तलबा मुतासिर हुए हैं। दीगर यूनिवर्सिटीज़ में डैलस, एल पासो, रियो ग्रांड वैली, A&M, वुमेंस यूनिवर्सिटी और टेक्सास टेक शामिल हैं।
अमरीकी महकमा दाखिला ने हाल ही में ऐलान किया था कि वो तलबा के सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी करेगा ताकि यहूदी मुखालिफ मवाद पर नज़र रखी जा सके। यह फैसला सदर डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के बाद सामने आया, जिनका ताल्लुक फ़लस्तीन की हिमायत में कैंपस मुजाहिरों से है। इमिग्रेशन वकील नईम सुखिया के मुताबिक स्विस से निकालना किसी भी तालिब इल्म को इमिग्रेशन निज़ाम से फौरी तौर पर बाहर निकाल देता है, जिससे न सिर्फ उनका तालीमी मुस्तकबिल बल्कि उनके अहल खाना की हैसियत भी मुतासिर हो सकती है। उन्होंने तलबा को फौरी तौर पर अपने DSO से राबता और री इन स्टेटमेंट्स की दरख्वास्त देने का मशवरा दिया है। सोशल मीडिया पर सेफ टेक्सास स्टूडेंट के हैशटैग के तहत एक मुहिम भी चल रही है, जिसमें इंसाफ का मुतालबा किया जा रहा है। बास तलबा तंजीमें इस फैसले को अदालत में चैलेंज करने पर गौर कर रही हैं। यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से तलबा को ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। ताहम मौजूदा सूरत हाल ने बैनुल अक़वामी तलबा के लिए अमरीका में तालीम का मुस्तकबिल गैर यकीनी बना दिया है। अमरीका भर में तलबा वीज़ा मनसूखी में टेक्सास अब तक सरफहरिस्त है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर्स प्रोग्राम से तलबा की इमिग्रेशन ख़त्म कर दी गई। 8 जामियात मुतासिर हुई हैं। UNT और UT आर्लिंगटन में 27 तलबा की हैसियत ख़त्म की गई है। मुतासरा तलबा की अक्सरियत का ताल्लुक साउथ एशियाई ममालिक और मशरिक़ वस्ता से है। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा दाखिला ने सोशल मीडिया निगरानी का भी ऐलान कर दिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात पर यहूदी मुखालिफ मवाद की जांच शुरू कर दी गई है, जबकि अमेरिका में इमिग्रेशन जज ने अपने फैसले में कहा है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म और फ़लस्तीनी कारकुन महमूद खलील को मुल्क बदर किया जा सकता है। फ्रांसीसी खबररसां एजेंसी ने फॉक्स न्यूज़ का हवाला देते हुए बताया है कि असिस्टेंट चीफ इमिग्रेशन जज जेमी कॉमिन्स ने कहा है कि हुकूमत ने इन तकाज़ों को पूरा कर लिया है, जिनसे यह साबित होता है कि इसके पास महमूद खलील को मुल्क बदर करने की ठोस वजूहात। अमेरिकन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन ने एक बयान में कहा है कि एक इमिग्रेशन जज ने आज की समाअत के फ़ौरन बाद फैसला दिया कि महमूद खलील को अमरीकी इमिग्रेशन कानून के तहत मुल्क बदर किया जा सकता है। अदालत को लिखे गए ख़त में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसरार किया था कि महमूद खलील के एक्विटिज़म से वाशिंगटन की खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुँच सकता है। ताहम उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से तबसरा करने से इनकार कर दिया था कि अलजज़ायर में पैदा होने वाले फ़लस्तीनी तालिब इल्म हमास से मुंसलिक हैं। ख़त में मुबैना तौर पर यहूद मुखालिफ मुजाहिरों और खलल डालने वाली सरगर्मियों में महमूद खलील की शिरकत और किरदार का हवाला दिया गया है, जो अमरीका में यहूदी तलबा के लिए नासाजगार माहौल को फ़रोग़ देते हैं। ख़त में किसी मुबैना जुर्म का कोई हवाला नहीं दिया गया। बरतानवी खबररसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील को एक माह कबल न्यूयॉर्क में इमिग्रेशन के एहलकारों ने 12 मील दूर देही इलाके लोजियाना के हिरासती मरकज़ में मुंतकिल कर दिया था। अमेरिका में इमिग्रेशन जज जेमी कॉमिन्स ने जीना लोजियाना में लॉसल इमिग्रेशन कोर्ट में समाअत के दौरान कहा है कि अगर वो मुल्क बदर करने के काबिल नहीं है तो मैं जुमे को इस केस को ख़त्म कर दूंगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया का कहना है कि इसने 1952 के एक कानून के तहत महमूद खलील की मुल्क बदरी का हुक्म दिया है। ये कानून वज़ीर ख़ारजा को किसी भी ऐसे शख्स की मुस्तकिल रिहाइश मनसूख करने की इजाज़त देता है जिसके बारे में वो फैसला करते हैं कि वो अमरीकी ख़ारजा पॉलिसी को नुकसान पहुँचा रहा है। अमरीकी हुकूमत का यह भी कहना है कि फ़लस्तीन के हामी महमूद खलील को मुल्क से इसलिए भी बेदखल कर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी वीज़ा दरख्वास्त में इस बात को छुपाया कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीनी इमदादी एजेंसी के लिए काम किया है। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये भी नहीं बताया कि वो बैरूत में बरतानवी सिफारत खाने में शाम के दफ्तर के लिए काम करते थे और वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी एप्थाइड डाइवेस्ट ग्रुप के रुकन थे। तो व्यूअर्स, आप अमेरिका में जारी तलबा और गैर मुल्कियों के खिलाफ जारी बड़े क्रैकडाउन और नई इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के नफाज के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दें फिल वक्त इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।